when you came in 2014, prior to you were already into distribution business, predominantly into life insurance or mutual fund since couple of years. Okay, and then you completed CFP certification with me. Okay, so what has what are the transformation has happened compared to pre-journey and the right now in post-journey? So if I speak in your language, it is a 360 degree transformation. So basically, when you are a into distribution business, so it's like a chemist. Like many advisors give this example of a chemist. So I will also give you that same example. It's like a chemist thing that you are going to a doctor and ask. I mean, going to a chemist and asking what medicine is suitable to you. Whereas when you have done CFP, so you can give a lot of ideas because you don't think from a product angle. So when you are into distribution, you think from a product angle. Maybe people think from that how in the product that you recommend, in that product, how much you are going to get. Nobody cares about what customer is going to get. But there are many people who, of course, believe in the mindset कि client जो है उनका अच्छा होना चाहिए और client को जो अच्छा है वही recommend करते हैं. But still उसमें ये सोच बहुत अच्छी होती है. But then there is also one more thing कि when you do CFP, तो जो ऐसे लोग हैं who are not interested in commissions and all, तो उनके लिए भी बहुत important हो जाता है CFP because the one who is doctor or MD you can say, okay, there is a difference between normal MBBS doctor and an MD doctor. So when your CFP is like a MD doctor practice, and it's a wonderful thing because now when you get to know what is the problem, okay, because CFP is something you identify a problem and then you give a solution. So it's 100% thing that you give, right? Whereas normal क्या होता है distribution में कि somebody will call you and tell कि हाँ I have this much money and I want to park for so many years. तो आपके दिमाग में जो product है आपने recommend कर दिया, business is done. Whereas when you are a CFP and goal-based activities you have done a complete financial plan. तो क्या हो जाता है कि तुम्हें पता है कि पैसा कितना आएगा, वो पैसा तुम्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है as per your goal, and accordingly तुम्हें उस returns generate हो जाएंगे, right? So इसमें क्या होता है, it acts as a solution. So maybe when I will share few of my testimonials, so आपको पता चलेगा कि what direction I want to tell you, कि how it is important, how it is different from a normal distribution business. गुड, वेरी गुड. तो मैसेज बहुत सिंपल है कि पहले कहीं ना कहीं आपको एएमसी आपको ड्राइव करती है कि ये नया NFO है और आप उनके सेल्स एजेंट बन के आप बेच रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपको जो ट्रेनिंग मिली है वही आप करेंगे. सेल्स ट्रेनिंग इंश्योरेंस कंपनी ने दी है, म्यूचुअल फंड ने दी है, कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर ने दी है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो आपको बताया जाए वही आपको करना है. ओके, यू बिकम अ सेल्स आर्मी. जबकि आप एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करते हैं, प्रॉपर कोचिंग करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जो पहले का अप्रोच है वो प्योरली सेल्स अप्रोच है कि बैंक के आरएम में और एक इंडिपेंडेंट एमएफडी में कोई डिफरेंस नहीं होता है. वो बैंक का आरएम भी वॉकिंग कस्टमर को वही करता है कि आज ये प्रोडक्ट है, आज नया प्रोडक्ट आया, कल बंद हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, अच्छा रिटर्न पास में दिया, अच्छा रिटर्न फ्यूचर में देगा. तो कहीं ना कहीं we have seen that yes, so we can say 9 out of 10, whether it is working in a corporate role or whether it is working as an independent, दोनों का काम करने का तरीका सेम ही होता है कि जाके बेचो बेचो बेचो. ओके, और उसको लगता है कि जो कंपनी ने अवार्ड्स दिया है सेल्स टारगेट के लिए वही उसकी अचीवमेंट है. हाँ, तो कहीं ना कहीं that is not your achievement. Your achievement is when your client is satisfied, when your client is happy, when your client gives you more referral. What Pashwa said that we don't ask for referral, but we get the referral from client, because when client is delighted, they will like to give they want their friend, colleague, relative is benefited like same. If I am satisfied with one doctor, then I'll definitely recommend that doctor to my near and dear, because I don't want that they do a trial error and suffer in illness or suffer in times of more money payment, etc. So we like to give a referral. Okay, so
we have to understand as a distributor ke achieving the business target is not the your success, but creating 100-200 families satisfied family, जो आपके clients है, जो आपसे satisfied है, जो आपके साथ long term टिके है, आपकी thought process के हिसाब से आप उनका financial plan बना के आप उनको एक solution दे रहे हैं, so that is your achievement, where first one is the shortcut and second one is the lengthy way, but definitely each is going to be more successful in the long term. Pashwa can say that के 2014 में आप काफी सारे मीटिंग्स अटेंड करते होंगे म्यूचुअल फंड की, एनएफओ की है या इंश्योरेंस के प्रोडक्ट लॉन्च की, आपके काफी सारे ऐसे फ्रेंड होंगे 10-15. आज आप एक रिकलेक्ट करें कि वो 10-15 जो आपके साथ आते थे मीटिंग्स में, ओके, और आप दोनों के बीच में आप डिफरेंस कितना क्रिएट किया हो गया, मुझे बताओ. एक जस्ट यू इमेजिन. डिफरेंस बड़ा सिंपल है सर. मैं ज्यादा एएमसी मीटिंग्स नहीं अटेंड कर पाता हूँ एंड वो शायद अभी भी कर पाते, ये एक डिफरेंस है. और इट इज नथिंग दैट आई अवॉइड एएमसीज और समथिंग, बिकॉज क्या होता है कि व्हेन यू मीट डिफरेंट पीपल तो एक माइंडसेट में डिफरेंस आ ही जाता है कहीं ना कहीं. और क्या होता है कि गोल बेस्ड चीज मुझे ज्यादा ये लगता है. मोस्ट फंड आता है ना, तो एनएफओ मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं नहीं रेकमेंड करता हूँ. मेरे क्लाइंट्स भी मुझे काफी बार फोन करके बोलते हैं कि पाश भाई ये एनएफओ है, हमें ईमेल आया है यहाँ से कंपनी से, एएमसी इज कम्युनिकेटिंग बट यू गाइज आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू अस. सो माय आंसर इज वेरी क्लियर टू माय क्लाइंट्स आल्सो इज दैट सर वी डोंट प्रमोट एनएफओ. एनएफओ इज लाइक अ न्यू बिजनेस, चला या तो नहीं चला. तो ये एक चीज है. बट ओवरऑल आई फील कि यू नो आई शुड रेकमेंड विच हैज अ गुड पास्ट हिस्ट्री एंड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इज बेस्ड ओनली ऑन द गोल बेस. तो ये एक चीज पे वी आर वेरी क्लियर ऐसा है. तो अभी एएमसी मीट वगैरह नहीं होती है या कम कर दिया. बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके 10 अच्छे फ्रेंड होंगे, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री कलीग होंगे. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आज कहाँ पे है, कैसे है, बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनके बिजनेस का जो वॉल्यूम होगा, ओके, और आपका जो बिजनेस का वॉल्यूम होगा, आपने बताया 60 करोड़ आपने कर दिया, 75 लाख की एसआईपी बुक साइज. मुझे बताओ उस समय आपके साथ में वही थे, जो भी लेवल पे था उतना वो इतना कर पाए, यस और नो? ऑनेस्टली नो. मतलब मैं उनके लिए खराब नहीं बोलना चाहता हूँ, बट ऑनेस्टली नो. तो जो ट्रूथ है तो बोलना पड़ेगा ना, दैट इज अ बिटर ट्रूथ. क्योंकि हमने सोचा कि भाई हम रोज ज्यादा नंबर ऑफ मीटिंग्स करेंगे, हमें तो इंडस्ट्री ने सिखाया है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या म्यूचुअल फंडिंग इंडस्ट्री में एग्जांपल, या सेल्स में, मोर नंबर ऑफ पीपल यू मीट यू विल गेट अ मोर चांस ऑफ सेल. ओके, so right. That could be a workout in short term when you are starting your career for a first year or second year, but if you follow after 10 years, then it is the basically you will never grow up as a professional. You will become a sales agent and you might be earning and taking, यानी कि वो कहते हैं ना कि ब्रेड बटर का पैसा निकलता है उससे. एंड आपकी इमेज भी ऐसी रहती है कि भाई ये व्यक्ति कुछ ना कुछ बेचने आया होगा अभी. सो when you want to when you so समझो कि 10 साल पहले या 6-7 साल पहले हो सकता है कि पाशो भी ऐसा करते होंगे, बट ओवर पीरियड टाइम ही हैज इन्वेस्टेड एट टाइम ऑलमोस्ट. उस समय भी हम बात करें तो 1000 आवर्स का टाइम इन्वेस्ट किया. उस समय उसने रिक्वायर्ड कोचिंग फी और सीएफपी का एजुकेशन फी इन्वेस्ट किया. मे बी उस समय 100,000 होगा, सब मिला के 1 लाख के करीब एग्जाम्पल. आज इन्फ्लेशन एडजस्टेड 2 लाख पकड़ लीजिए, समझो. तो कहने का मतलब है कि वो किया तो आज उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एंड नाउ ही इज हैविंग ओन ऑफिस, हैविंग अ मैन पावर, हैविंग द सिस्टमेटिक अप्रोच, एंड ही इज सिटिंग 50% ऑफ टाइम एंड प्रोवाइडिंग द क्वालिटेटिव सॉल्यूशन टू 200-300 फैमिलीज. बराबर ना? इसलिए तो आज मेरे साथ आप टाइम दे पाए. अदरवाइज आप कहीं ना कहीं दौड़ते होंगे. करेक्ट. Good, very good. So now let me continue. Process oriented approach basically हो जाता है पूरा. Yes.